Question is, if alpha plus beta equal to pi by 2 and beta plus gamma equal to alpha, then tan alpha is equal to what? ओके, तो हमें यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कंप्यूट करनी है. सो देखिए ये है गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है पाई बाई 2. तो यहाँ से हम कंप्यूट करें बीटा, तो बीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा. ठीक. दूसरा गिवन है बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ से गामा की वैल्यू आएगी गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा के इक्वल. ओके, तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को. तो बाय द आइडेंटिटी ये होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा. ठीक. अब देखिए अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? गामा के. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सो दैट इज टेन गामा इंटू 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा. और टेन बीटा की वैल्यू क्या हो? बीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा. ओके, सो ये हो जाएगा टेन गामा इंटू 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सो दैट इज कॉट अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा. ठीक. टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज 1, तो इसको प्रोडक्ट करके आगे 1, 1 प्लस 1 इज 2. तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 टेन गामा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा. वैल्यू चाहिए हमें टेन अल्फा की. सो ये हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा. ओके, so therefore this is the required value of tan alpha, that is tan beta plus 2 tan gamma. So correct option is C option. The question is, if alpha plus beta plus gamma that is equal to 2 pi, then we have to find out the value. That is point number A is tan alpha by 2 plus tan beta by 2 plus tan gamma by 2 that is equal to tan alpha by 2 tan beta by 2 tan gamma by 2. The point number B is tan alpha by 2 tan beta by 2 plus tan beta by 2 tan gamma by 2 plus tan gamma by 2 tan alpha by 2 that is equal to 1. The point number C is tan alpha by 2 plus tan beta by 2 plus tan gamma by 2 that is equal to minus tan alpha by 2 tan beta by 2 tan by 2, and the point number D is none of these. Now we have the question that is alpha plus, we have the question that is alpha plus beta plus gamma that is equal to 2 pi. So here we divide both side by 2. Both side by 2. So if we divide both sides by 2, it becomes alpha plus beta plus gamma by 2 is equal to 2 pi by 2. Let's solve this here, and it becomes alpha by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 that is equal to pi. Now if we go further, it becomes alpha by 2 plus beta by 2 that is equal to pi minus gamma by 2. Here if we put tan both side, if we put tan both side, it becomes tan alpha by 2 plus beta by 2 that is equal to tan pi minus gamma by 2. Now we use an identity here, that is tan x plus y that is equal to tan x tan y divided by 1 minus tan x tan y. So now if we solve this here, it becomes tan alpha by 2 tan beta by 2 tan alpha by 2 plus tan beta by 2 by 1 minus tan alpha by 2 tan beta by 2, and here it becomes minus tan gamma by 2. Now let's go further, and here we have tan alpha by 2 plus tan beta by 2 plus tan gamma by 2 that is equal to, it becomes tan alpha by 2 tan beta by 2 tan gamma by 2
And this is the answer of point number A, and this is our final answer. Thank you. Hello friend, welcome back. I hope you are enjoying it. Our question is, suppose sin cube x into sin 3x equal to summation m बराबर 0 to n cm cos mx is an identity in x, okay, where c0, c1 and cn are constant and cn, okay, cn nth term meaning nth constant cn not equal to 0, then the value of n, okay. तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करें. तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हम कुछ फॉर्मूलोज को लिख लेते हैं. क्या होता है, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. तो यहाँ से अगर मैं साइन क्यूब एक्स निकालूंगा तो साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 साइन x, ओके, माइनस साइन ऑफ 3x होल अपॉन 4. सिंपल. नेक्स्ट, सो अगर यहाँ पे इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखूँ, यानी कि साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x. तो साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 साइन ऑफ x माइनस साइन 3x, ओके, होल अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई साइन 3x. प्रोडक्ट करवा देता हूँ इसका, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है. ये हो जाएगा 3 साइन ऑफ x, ओके, इंटू साइन 3 ऑफ x माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x, ओके. नाउ यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 साइन ऑफ x, इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ, अगर 1/4 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 3/4, ओके, ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन 3x, ओके, और माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 3x. सिंप्लीफाई करते हैं, ये ब्रैकेट बंद. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको क्या ले सकता हूँ, 3/4. अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ और 2 का डिवाइड कर लूँ, ओके, तो ये जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x इंटू साइन 3 ऑफ x अपॉन 2. इसको एज इट इज लिखे रहने देते 1/4 साइन स्क्वायर 3x, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 3/8. 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो इसका अगर यहाँ पे यूज करूँ तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स, ओके, माइनस कॉस, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 3x. नाउ ये हो गया मेरा 3/8 कॉस x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस 2x, और हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. दिस इज माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 4 ऑफ x, ओके, माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 3 ऑफ x. और हम जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर होता है 2. अगर यहाँ पे साइन के टर्म्स में इसको लिखूँ तो क्या लिखूंगा, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x. सिंपल. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, अगर इसमें क्या कर दो 2 का मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं 3/8. ये हो गया cos 2x माइनस कॉस 4 ऑफ x. यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/8, ओके, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर 3x. सिंपल. तो साइन स्क्वायर 3x है तो उसको लिखूंगा 3/8, ये हो गया कॉस 2 ऑफ x माइनस कॉस 4 ऑफ x, ठीक है. और यहाँ से अगर देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/8 2 साइन स्क्वायर 3x को अगर यहाँ से लिखूँ तो अगर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन कॉस के टर्म में, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x. तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 6x, ठीक है. तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 3/8 कॉस
2x, okay, minus 3 by 8 cos 4x, minus 1 by 8, okay, plus 1 by 8 cos 6x. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को cos 0x ले सकता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा माइनस 1/8 cos 0x, ओके, प्लस 3 by 8 cos 2x minus 3 by 8 cos 4 of x, okay, and plus 1 by 8 cos 6x. तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या गिवन है cm cos mx, ओके. तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट वैल्यू n की क्या आती है मेरी cos nx के टर्म में ब्रेक हो रहा है, सिंपल. तो यहाँ से अगर देखूँ तो समीशन कितने टाइम्स गया m इक्वल टू 0 to n टाइम्स, ओके. तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज n टू समीशन m बराबर 0 to n cm cos mx के इक्वल है. तो बाई कंपेयरिंग LHS एंड RHS, ओके, ठीक है. तो cos 6x हाईएस्ट टर्म आता है यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 6x, ओके. तो यहाँ से क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 6, ओके. ये मेरा आंसर होगा. तो यहाँ पे जाके लिख देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 6, ओके. थैंक यू, एंजॉय लर्निंग. In any triangle ABC, we need to prove that cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2 is equal to cot A by 2 into cot B by 2 into cot C by 2. So we're going to start this question by writing. So the sum of the angle of triangle is equal to 180. So we'll get A plus B plus C equal to 5. Now by dividing on both sides by 2, we'll get A plus B divided by C divided by 2 into 5 by 2. Okay, so further solving, we'll get A by 2 plus B by 2 is equal to 5 by 2 minus C by 2. Now by taking cot on both sides, we'll get cot A by 2 plus cot B by 2 plus is equal to cot pi by 2 minus cot pi by 2 minus C by 2. Okay. Now we know that the formula of cot A plus cot B is given by formula of cot A plus B is given by cot A cot B minus 1 divided by cot A plus cot B. So in this equation we have got A by 2 and B by 2, so put A is got A by 2 and B is got B by 2 in this formula, so we'll get cot A by 2 into cot B by 2 minus 1 divided by cot A by 2 plus cot B by 2, which is equal to cot pi by 2 minus C by 2 is given by tan C by 2. Okay, so further solving by this equation as cot A by 2 into cot B by 2 minus 1 divided by cot A by 2 plus cot B by 2 is equal to 1 by cot C by 2. Cross multiplying this, will get cot C by 2 cot A by 2 into cot B by 2 minus 1 is equal to cot A by 2 plus cot B by 2. In further solving, we'll get cot C by 2, get cot A by 2 into cot B by 2 into cot C by 2 minus cot C by 2 is equal to cot A by 2 plus cot B by 2. So in further solving, what we'll get is cot A by 2 plus cot B by 2 plus cot C by 2. We'll get cot A by 2 plus cot B by 2, cot C by 2 with this both sides, get plus cot B by 2 plus cot C by 2 is equal to cot A by 2 into cot B by 2 into cot C by 2. As in this question, you can see we need to prove this only cot A plus 2. So therefore we can say that hence proved, as we have got the same result that we have to prove.
Thank you so much for watching the video. I hope you like the solution. Hello friends, the question is ABC is a triangle such that sine of 2a plus b is equal to sine of c minus a is equal to minus of sine b plus 2c is equal to 1 by 2। और फिर बोल रहा है कि ABC जो है वो AP में है, तो हमको ABC की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या हमको कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसमें ये साइन का एंगल 1 by 2 के इक्वल है, यानी साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 by 2। ठीक है, इसी तरह साइन ऑफ c माइनस a इज इक्वल टू 1 by 2। इसी तरह माइनस का साइन ऑफ b प्लस 2c इज इक्वल टू 1 by 2। तो यहाँ से साइन ऑफ 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 by 2, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन का 150 डिग्री। ठीक है, यानी ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और साइन का 180 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो साइन ऑफ c माइनस इज इक्वल टू 1 by 2, यानी ये हो जाएगा साइन ऑफ c माइनस a इज इक्वल टू 1 by 2। किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन ऑफ 30 डिग्री, यानी c माइनस a इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस का है साइन b प्लस c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 by 2, यानी ये हो जाएगा साइन ऑफ b प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 1 by 2। ये नेगेटिव आ रहा है, यानी ये वैल्यू इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स इट इज बिगर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 से ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, तभी तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ b प्लस 2c इज इक्वल टू साइन का ये कितने के एंगल का होगा, 210, यानी 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ 180 प्लस 30 के लिख सकते हैं माइनस का साइन 30, यानी माइनस का 1 by 2। तो यहाँ से b प्लस 2c इज इक्वल टू आ गया 210 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और हमको गिवन है कि ABC इन AP, इसका मतलब ये हुआ कि 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले को 2 मान लेता हूँ, और इस वाले को 3 मान लेता हूँ, इस वाले को 4। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन अगर हम बात करें इक्वेशन थर्ड से, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यहाँ पे हमको गिवन है b प्लस 2c इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी ये जो होगा 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 420। अब अगर हम देखें तो 2b इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा a प्लस सी प्लस 4c इज इक्वल टू 420, यानी आ गया a प्लस 5c इज इक्वल टू 420 डिग्री। इक्वेशन 5 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम यहाँ पे देखें इक्वेशन 2 c माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और इक्वेशन 5 a प्लस 5c इज इक्वल टू 420, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 5, इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 5c प्लस c,
यानी 6c इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 420 प्लस 30 डिग्री यानी 450 डिग्री आ जाएगा, यानी यहाँ पे c आ गया 75 डिग्री। ठीक है, c की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 75 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, c माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से c की वैल्यू आई गई है तो a निकाल लेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस 30 यानी 75 माइनस 30, ये आ गया 45 डिग्री a की वैल्यू। अब हमको b की वैल्यू चाहिए, तो हमको b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्वेशन 4 से अगर मैं देखूँ तो 2b इज इक्वल टू है प्लस सी, तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 45, सी की है 75, ये हो गया 2b, ये हो गया 2b इज इक्वल टू 120 डिग्री यानी b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू आई है 45 डिग्री, b की वैल्यू आई 60 डिग्री, c की वैल्यू आई है 75 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। In this question we are given that alpha plus beta minus gamma is equals to pi, and we have to prove that sin square alpha plus sin square beta minus sin square of gamma is equals to 2 sin alpha sin beta cos gamma. So we will start from the left hand side. Consider LHS, which is sin square of alpha plus, now this is the form of a square minus b square, so we can write this as sin beta minus sin gamma multiplied by sin beta plus sin gamma. So this will be equals to sin square of alpha plus, now this is the form of sin c minus sin d, and this is equals to 2 sin beta minus gamma by 2 multiplied by cos beta plus gamma by 2, and this bracket is the form sin c plus sin d. So this will be equals to 2 sin beta plus gamma by 2 multiplied by cos beta minus gamma by 2. Now rearranging terms, we can write sin square alpha plus 2 sin beta minus gamma by 2 multiplied by cos beta minus gamma by 2, and this is multiplied to 2 times of cos beta plus gamma by 2 into sin beta plus gamma by 2. Now recall the trigonometric identity, which is sin 2 sin a cos of a is equals to sin 2a. So using this identity, what we got, sin square alpha plus sin beta minus gamma multiplied by sin of beta plus gamma. Now we are given that alpha plus beta minus gamma is equals to pi. So from this equation we got alpha plus beta minus gamma equals to pi, and this implies that beta minus gamma is equals to pi minus alpha. So substituting this value, we get sin square of alpha plus sin of pi minus alpha multiplied by sin beta plus gamma, and this will be equals to sin square of alpha plus, now sin pi minus alpha is sin alpha multiplied by sin beta plus gamma, and now taking sin alpha common, sin alpha, we are left with sin of alpha plus sin of beta plus gamma. Now from this equation we can write alpha as pi minus beta minus gamma. So our equation here will be sin of alpha into sin alpha will be pi minus beta minus gamma plus of sin
beta plus gamma. So this will be equals to sine of alpha into sine pi minus theta is sine theta, so we get sine beta minus gamma plus sine beta plus gamma, and this will be equals to sine of alpha into, now sine c plus sine d is 2 sine beta minus gamma plus beta plus gamma by 2 into cos of beta minus gamma minus beta minus gamma by 2. So simplifying these terms, we get this will be sine of alpha, we have a 2 here, and multiplied by sine 2 beta by 2, which is beta, into cos, here we will minus 2 gamma by 2, that is minus of gamma, and this will be equals to 2 sine alpha sine beta. Now cos of minus theta is cos theta, so we get cos of gamma, and this is equals to our right hand side, hence our question is proved. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 हमें दिया गया है, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो चलिए इस क्वेश्चन को एवल्यूट करते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 हमारा दिया गया है, तो 3a इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि 180 पाई बाई 3, ठीक है, और b भी हमारा यही हो जाएगा। अब हम वहां से जो हमें प्रूफ करना है उसमें से हम LHS लेते हैं, तो LHS इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है, tan a हमारा क्या आया tan पाई बाई 3, b हमारा क्या आया पाई बाई 3, c हमारा क्या आया पाई बाई 3, और tan पाई बाई 3 का वैल्यू हम जानते हैं √3 प्लस √3 प्लस √3, ये हमारा क्या आ जाएगा 3√3। और वैसे ही सिमिलरली हम RHS को भी एवल्यूट कर लेते हैं, और RHS इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, ठीक है, tan पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 3, तो हमारा क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, 3√3। देयरफॉर LHS और RHS दोनों का वैल्यू क्या आया बराबर आया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ भी हमारा 3√3 आया और यहाँ भी हमारा 3√3 आया, तो इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप यू गाइज विल गेट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।